Hello everyone. Now, today, again in the new section, you all are welcome. Today we'll be doing the extraction of copper and aluminium. In the previous video, we have discussed about extraction of iron and zinc. These are the four metals which are in our syllabus. So, let us start with the extraction of copper. Main ore of the copper are copper pyrites, formula CuFeS2, copper glans Cu2S. Other than this, also we have ores like cuprite, ruby copper, azurite, and so on. But the most of the copper is extracted from copper pyrites. It means the chief or the main ore of copper is copper pyrites. Now let us discuss about different steps in the extraction of copper, that is metallurgy of copper. First step is concentration. Now, as you know, the main ore is copper pyrite, which is a sulfide ore. And we have already discussed that the sulfide ores are being concentrated by Froth flotation process. So in this also, copper pyrites are concentrated by Froth flotation process, which we have discussed earlier. After concentration, by the step of Froth flotation, we'll do roasting. This also we have discussed in the basic principles of the metallurgy. Roasting means heating of sulfide ore in presence of air. So in this step, the concentrated ore is roasted in the presence of air. And during the roasting, moisture is removed. Number one, sulfur, arsenic, phosphorus are oxidized into oxides, means these elements may be present in the form of the impurities. And also during roasting, copper pyrites is also oxidized up to some extent, and the reaction involved is 2CuFeS2 plus O2, means roasting. It converts into Cu2S, 2FeS and SO2. So after roasting, we don't get only CuFeS2, we get Cu2S and FeS, the mixture of these two. After roasting, the next step in the extraction of copper is smelting. Smelting term we have also discussed in extraction of iron, where we have studied that smelting means heating of ore in excess of air in a specially designed furnace called as blast furnace. But the main difference between the smelting of copper and smelting during extraction of iron is that in the extraction of iron, the smelting process is done in blast furnace, and from there only we will get iron. But in the smelting process during the extraction of copper, we didn't get copper after the process of smelting. This thing is very important. So what we have to do, mixture of roasted ore and coke and sand. Here sand act as a flux because the impurities are of FeS, which is a compound of iron, basic in nature. So the mixture of roasted ore, coke and sand, this mixture is again called as charge. Whenever in a blast furnace we used to add the material, that material is popularly known as charge. So this mixture is heated in a blast furnace. Second thing, the blast furnace which is being used or utilized in extraction of copper is smaller in size than the blast furnace used in extraction of iron, because here the main objective of using blast furnace, using smelting, is not to extract copper but to remove the impurity of iron compound. This thing has to be very importantly clearly kept in your mind. The reactions which takes place inside the blast furnace during the smelting are FeS plus O2 forms FeO plus SO2. Now this FeO has to be removed. So this FeO, which is present in the form of impurity, react with SiO2, which is a flux, and forms iron silicate, that is FeSiO3, in the form of slag. Other than
Other than the removal of FeO in the form of iron silicate, the reactions taking place inside the blast furnace are as follows. Copper sulfide react with O2 to form cuprous oxide. Again, cuprous sulfide react with oxygen to form cuprous oxide and SO2. Cu2O means cuprous oxide react with FeS present in the form of impurity to form cuprous sulfide and FeO. Now this FeO will again react with flux, that is SiO2, to form slag. So here in the blast furnace, the maximum amount of iron oxide or iron sulfide are being removed in the form of the slag. From the base of the furnace, that is blast furnace, we get a molten mass which is called as matte, which contains mainly cuprous sulfide and small amount of FeS. So now you should be clear. आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे कि कॉपर की एक्सट्रैक्शन के स्मेल्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉपर एक्सट्रैक्ट करना नहीं है, जबकि मेन ऑब्जेक्टिव है आयरन की जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको स्लैग की फॉर्म में निकाल देना. और फ्रॉम द बेस ऑफ द फर्नेस हमको मिलता है क्यूप्रस सल्फाइड मेनली, और अगर आयरन सल्फाइड बचा हुआ है वो. नेक्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन इज बेसिमराइजेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. बेसिमराइजेशन. द मेटे is introduced in the Bessemer converter. This is the design or the shape of the Bessemer converter. आप इसकी शेप देख सकते हैं. ये कैसा है देखो. It is a pear shaped furnace which is lined from inside by silica. ये अंदर की तरफ यहाँ पर सिलिका की लाइनिंग होगी, इधर अंदर की तरफ यहाँ पर सिलिका की लाइनिंग होगी. ठीक है. और ये इस तरीके से दो हिंजेस से अटैच्ड है और इसको हम टिल्ट कर सकते हैं 180 डिग्री के ऊपर. जैसे आपने देखा होगा ना, जब आरसीसी बनती है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, वो एक मशीन चलती है बड़ी सी, जब बिल्डिंग्स की छत वगैरह डाली जाती है वो गोल गोल घूमती है, वो भी तो 180 डिग्री पर टिल्ट होती है. पहले उसमें मिक्सचर बनता है सीमेंट का, गिट्टी का, पानी का, सैंड का, फिर उसको निकालते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से 180 डिग्री पे इसको हम रोटेट कर सकते हैं. जो भी इसके अंदर का मटेरियल है हम उसको निकाल सकते हैं. तो ये बेसिमर कन्वर्टर, ये इसके अंदर इंट्रोडक्शन है. यहाँ से हम एयर और सैंड का ब्लास्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पर ये मोल्टन ब्लास्ट है, मोल्टन मैटे हैं. ये स्मॉल होल्स हैं जहाँ से एयर सर्कुलेट होती है इस पूरे मोल्टन मटेरियल में. द कन्वर्टर कैन बी टिल्टेड टू एम्प्टी द मास by rotating it at 180 degree. A blast of hot air and sand is introduced. Reactions taking place inside the blast furnace are as follows. Cuprous sulfide react with oxygen to form cuprous oxide, Cu2O and SO2, which is eliminated out. FeS, which was present earlier in the matte, react with oxygen to form ferrous oxide, FeO and SO2, and this FeO combines with sand, जो हमने हॉट एयर ब्लास्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया और अंदर की लाइनिंग भी सैंड की है, to form slag, FeSiO3, iron silicate. This will float at the top. And finally, the cuprous oxide reacts with cuprous sulfide to form copper. Auto reduction. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. मेटल्स प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, दे डू नॉट रिक्वायर एनी रिड्यूसिंग एजेंट, देयर ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड ऑटोमेटिकली, सो द प्रोसेस कॉल्ड एज ऑटो रिडक्शन. आपने देखा होगा स्मेल्टिंग में हमने कोक नहीं लिया है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वो सिर्फ वहाँ पे फ्यूल की तरह यूज़ हो रहा था, वहाँ पे उसने कोई रिडक्शन नहीं किया था. तो ये डिफरेंस है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन से. बार बार मैं इस बात पे इंसिस्ट कर रहा हूँ. एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मेल्टिंग टेकिंग प्लेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. तो यहाँ पर हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट अलग से नहीं लेते हैं. तो क्यूप्रस ऑक्साइड ऑटोमेटिकली रिएक्ट विद क्यूप्रस सल्फाइड इन द बेसिमर कन्वर्टर टू गेट कॉपर एंड रिलीजेस SO2 गैस. तो यहाँ पे हमको कॉपर मिल जाता है ऑटो रिडक्शन से.
तो जैसे ही वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है बेसिमर कन्वर्टर में, तो जब हमें ये पता चल जाता है कि पूरा का पूरा क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया है, आयरन जो है वो स्लैग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है FeO प्लस SiO2 से, तब हम उस मोल्टन कॉपर को पोर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं उसको 180 डिग्री पर टिल्ट करके। द मोल्टन कॉपर इज पोर्ड ऑफ, एज इट कूल्स इट गिव अप SO2 इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। भाई मोल्टन कॉपर में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बबल्स की फॉर्म में निकलती है धीरे धीरे, और इन बबल्स के निकलने की वजह से दिस गिव्स शेप ऑफ ब्लिस्टर्स ऑन इट्स सरफेस, यानी ऊपर फफोले से पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर की तरह बन जाते हैं। जैसे जब हलवा गाढ़ा हो जाता है सूजी का तो उसके ऊपर से जिस तरीके से बुलबुले से निकलने लगते हैं वैसा बन जाता है। इसीलिए इस वाले जो कॉपर जो हमको मिलता है बेसिमर कन्वर्टर से, दैट इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर। हेंस द कॉपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेसिमर कन्वर्टर इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर। अब ये कॉपर जो हमको मिल जाता है इट कंटेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, तो उसकी फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं। पहला स्टेप है पोलिंग। पोलिंग में मैंने पहले बताया कि मोल्टन मेटल को यानी मोल्टन कॉपर को एक बड़े से कंटेनर में मेल्ट कर लेंगे, बड़े से टैंक में मेल्ट कर लेंगे। फिर हम ग्रीन वुडन पोल्स यानी हरी लकड़ी के लट्टों से उसको मिक्स करते हैं, एजिटेट करते हैं। तो वो ग्रीन वुडन पोल्स में से जो हाइड्रोकार्बन गैसेस रिलीज होती हैं वो कॉपर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देती हैं, कुछ को रिड्यूस कर देती हैं, कुछ गैस की फॉर्म में निकल जाती हैं, कुछ उसकी सरफेस पर प्रेसिपिटेट होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्कम, जिसको हम बाहर स्किम्ड ऑफ कर देते हैं। स्किम्ड ऑफ यानी ऊपर ऊपर से निकाल लेते हैं। फिर जो कॉपर हमको मिलता है उसकी हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यह है फिगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का। इम्प्योर कॉपर एनोड होता है, प्योर कॉपर की थिन स्ट्रिप कैथोड होती है, कॉपर सल्फेट और H2SO4 का मिक्सचर इलेक्ट्रोलाइट होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कॉपर लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर आयन, और यही कॉपर आयन सॉल्यूशन से चले जाते हैं कैथोड पर, वहाँ जाकर के रिड्यूस हो जाएंगे टू फॉर्म कॉपर। जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एनोड के नीचे एनोड मड की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगी। जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, और जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अंदर सॉल्यूशन में आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। मेन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम आर बॉक्साइट Al2O3.2H2O। एक बात और, कई बुक्स में ऐसे भी रहता है Al2O3.XS2, तो वो भी फॉर्मूला सही है क्योंकि कई ओर्स कई सोर्सेस ऐसे भी मिलते हैं जो वाटर की क्वांटिटी वेरी करती है। दूसरा क्रायोलाइट Na3Al(F6)। अब अलग अलग स्टेप्स जो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। एल्यूमिनियम इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट उसका मेन प्राइम ओर है, इसी से हम लोग एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेनली। स्टेप 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। इट इज़ डन बाय केमिकल सेपरेशन और ऑल्सो कॉल्ड एज लीचिंग, और ये प्रोसेस होता है, इसका स्पेशल नाम है बेयर्स प्रोसेस। ये हम पिछले 2 वीडियो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लीचिंग या केमिकल सेपरेशन कैसे होते हैं, मैं उसके आगे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अब जब बेयर्स प्रोसेस के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। पहले स्टेप में हम पाउडर्ड बॉक्साइट और को सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं, तो वो बना लेता है वाटर सोल्यूबल कंपाउंड सोडियम एल्यूमिनेट NaAlOH का होल 4, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3 ये भी बोलते हैं। इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं, फिर इस सॉल्यूशन में से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। तो CO2 पास करने के बाद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के वाइट प्रेसिपिटेट हमको मिलते हैं। यह सोडियम एल्यूमिनेट प्लस CO2 gives us white precipitate of aluminum hydroxide and sodium bicarbonate। इन प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करके ड्राई करके स्टेप 3 में हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, इससे हमें मिल जाता है प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब उसके बाद जब हमको प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम एल्यूमिना भी बोलते हैं, अब उसकी करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। ये स्टेप सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था हॉल एंड हेरोल्ड्स ने, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम भी है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस।
एक चीज़ इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को हम कार्बन से, कोक से या किसी दूसरे सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि Al2O3 खुद अपने आप में एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और इसकी स्टेबिलिटी हाई होने की वजह से हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताने हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि भाई मेल्ट ही नहीं होता वो आसानी से, इसीलिए, एंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी एक प्रॉब्लम है। सो इट्स इलेक्ट्रोलिसिस इन मोल्टन स्टेट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा हमको उसको मोल्टन स्टेट में रखने के लिए, और इतने हाई टेम्परेचर पे जब हम मेल्ट करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को तो दो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा तो एक्सट्रैक्शन महंगा हो जाएगा। नंबर 2, इतने हाई टेम्परेचर पर जब एल्यूमिनियम हमको मिलेगी तो वह एल्यूमिनियम इवेपोरेट हो जाएगी, वेपोराइज हो जाएगी, उसके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के लगभग होगी, तो इससे क्या होगा, वेपर्स को फिर कंडेंस करना मुश्किल होगा। तो ये टेक्निकल लिमिटेशंस हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिडक्शन करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोसिस। तो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ करना पड़ता है हमको। क्या करते हैं, देखते हैं। सो देयरफॉर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी ऐड क्रायोलाइट Na3AlF6, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, सोडियम फ्लोराइड NaF एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड AlF3। इन तीनों को मिलाने से जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि फ्यूजन टेम्परेचर कम हो जाता है और वो मिक्सचर एक बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइट की बहुत अच्छी हो जाती है। तो बाय दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मोल्टन मिक्सचर इंक्रीजेस एंड फ्यूजन टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये हमारा मेन मोटिव हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। Electrolysis is carried out in an iron tank which is lined inside with gas carbon. ये गैस कार्बन का एक ऐसा एलोट्रोप है जो कि ग्रेफाइट की तरह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो कैथोड की तरह काम करता है, जबकि कार्बन की रॉड्स या हम कह सकते हैं ग्रेफाइट की रॉड्स विच आर डिप्ड इन मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट एक्ट एज एनोड। यहाँ पे फिगर देखें सब लोग ध्यान से, ये बना हुआ है आयरन का टैंक पूरा, और ये अंदर की ओर ये डार्क लाइन आपको दिख रही होगी, ये कोने में डार्क लाइन, ये बिल्कुल ये है गैस कार्बन की लाइन, ये मैंने कर रखा है और ये काम करती है कैथोड की तरह। ये रॉड्स हैं ग्रेफाइट की, ये मैंने लेबल किया हुआ है, ये ग्रेफाइट रॉड्स हैं जो हैं एनोड की तरह। ये यहाँ पर बीच में पड़ा हुआ है मोल्टन मिक्सचर जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, and this electrolyte contains molten aluminum oxide, sodium fluoride, calcium fluoride and Na3AlF6 cryolite। जब इसमें प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोस होने के बाद में कैथोड पर हमको एल्यूमिनियम मिलती है। अब एल्यूमिनियम की डेंसिटी इस मोल्टन मिक्सचर से ज़्यादा होती है तो नीचे की ओर बैठ जाती है, यानी कि मोल्टन एल्यूमिनियम सिंक्स टू द बॉटम, और ये यहाँ पर आउटलेट है, यहाँ से हम मोल्टन एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। नाउ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द आयरन टैंक ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ वी नो इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 to 8%, cryolite 80 to 85% to increase the conductivity of the electrolyte, calcium fluoride 5 to 7%, aluminum fluoride 5 to 7%. Temperature is maintained between 1200 to 1300 Kelvin by electrical heating or induction heating. Reactions at cathode बनाता है किसका, गैस कार्बन का। Aluminum ion gains 3 electron, changes into aluminum which sinks to the bottom. At anode जो किसकी बनी है, ग्रेफाइट की, वहाँ पर ऑक्सीजन बनता है, ऑक्साइड लूजेस 2 electron, changes into oxygen, ये दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके O2। अब क्योंकि टेम्परेचर 1300 केल्विन है तो इतने हाई टेम्परेचर पर जो ग्रेफाइट की रॉड होती हैं वो O2 से रिएक्शन करके CO2 बना देती हैं। दी O2 रिलीज्ड एट एनोड कंबाइंस विद कार्बन टू फॉर्म CO2। तो इससे क्या होता है कि हमको समय समय पर ग्रेफाइट की रॉड लगातार नई ऐड करनी पड़ती हैं,
लगातार हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड इंट्रोड्यूस करना पड़ता है क्योंकि बाकी चीज़ें बिल्कुल नहीं यूज़ होती हैं। तो रॉ मटेरियल हम इस टैंक में मिलाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट रॉड को लगातार हम नई नई ऐड करते जाएंगे और बॉटम से हमको मिल जाएगा एल्यूमिनियम। The aluminum which is formed sinks to the bottom due to its greater density and collects from bottom outlet. That's it.